గత కొద్ది రోజులుగా ఈ దేశంలో ఒక పరివర్తన రావాలని గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు రావాలని చెప్పి జాతీయ రాజకీయాలలో నేను క్రియాశీల పాత్ర పోషిస్తా అని చెప్తూ వస్తున్నటువంటి విషయం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. దానికి సంబంధించి అనేక ప్రయత్నాలు నేను చేస్తూ ఉన్నాను. అయితే కొంతమంది తెలిసి తెలియక అదేదో చిన్న ప్రయత్నం అనుకొని, చిల్లర మల్లర రాజకీయ ప్రయత్నం అనుకొని, కేవలం రాజకీయ పార్టీలను కూడగట్టి ఈ 19 ఎన్నికల కోసం ఏదో చేసేటువంటి ప్రయత్నం అని భావిస్తూ ఉన్నారు. నేను మొన్న చెన్నైలో కూడా చెప్పాను, అది అటువంటి ప్రయత్నం కాదు. ఇంత పెద్ద దేశంలో, ఇంత భిన్నత్వం ఉండే దేశంలో ఒక గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు రావాలంటే డెఫినెట్గా చాలా కష్టం చేయాల్సి ఉంటుంది, చాలామందిని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చాలామందికి చాలా విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది. అందులో గౌరవనీయులు సమాజ్వాదీ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ వచ్చారు. వారు నేను గత నెల రోజులుగా చాలా సందర్భాల్లో ఫోన్లలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం, వ్యూస్ అన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం టెలిఫోన్స్లో. అన్ని సందర్భాలలో నేను వారికి కూడా వివరిస్తూ ఉన్నాను. నేను బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు కానీ, చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు కానీ, కోల్కతా మమతా బెనర్జీ గారిని కలిసినప్పుడు కానీ, టైమ్ టు టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ఫార్మింగ్ మిస్టర్ అఖిలేష్ యాదవ్ that how we are forging ahead. Today, he has come down to Hyderabad. We had a detailed discussion on how to forge ahead, how to carry forward the whole mission. I have been trying my best to bringing in a qualitative change in the Indian political process, also in the process of governance, because 7 decades have gone. People's desires, people's aspirations are not fulfilled as they were supposed to be. Of course, we are considered to be a growing economy, but it's not in the desired lines. लोगों के जो अपेक्षाएं थी, उस प्रकार का कार्यक्रम जो होना चाहिए था, वो काम हिंदुस्तान में नहीं हुआ. 70 साल 71 साल बीत गए. जनता काफ़ी निराश है. किसी भी सेक्शन इस देश में संतुष्ट नहीं है. न किसान संतुष्ट है, न गरीब संतुष्ट है, न दलित संतुष्ट है, न माइनॉरिटीज अपना सिक्योर फील करते हैं. कई समस्याएं, कई तरीके के हमें आज सता रहे हैं. इसीलिए एक नया विकल्प का ज़रूरत है देश में, एक परिवर्तन का ज़रूरत है. इस परिवर्तन को लाने के दिशा में प्रयास हम लोग कर रहे हैं. आज उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी और समाज पार्टी के अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी हैदराबाद आए हैं. हमारे बीच बहुत ही विस्तार रूप से बातचीत हुआ है. हर चीज़ को, हर पहलू को हमने समझने की कोशिश की और हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे. ये आज के आज ये कोई 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 5th फ्रंट ऐसा नहीं है. पत्रकारों से मेरे निवेदन है कि इसी को कोई फ्रंट वंट का नाम ना दे. मैं पहले से कहते जा रहा हूँ कि ये कोई सियासी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का कोई मंच नहीं है. ये तो भारत के किसान को, भारत के जनता को, सारी चीज़ों को जोड़ने का एक नया क्रांति के तरफ, एक नया दिशा के तरफ कदम उठाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है. ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है. और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है. जो परिवर्तन हम चाहते हैं, देश का जितना आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी लिवरेज्ड in a very great manner. The neighbor country China has greatly done it, proved before the world. They were less in all the aspects than India 2.5, 3 decades back. Now they are the second largest economy of the world. So when they can do it, why not our country, why not India? When the
East Asian tigers can do it, when Malaysia can do it, when Sri Lanka, when Singapore can do it without having anything, when Koreas are doing, so why not India? We have all the capacity, we have 60% of the youth in the country, so we have to grow in a different manner. जो आज तक हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए जो नया होना है, जो नया हमको पाना है, उसके लिए हमारा कोशिश जारी है। मैं भरपूर धन्यवाद देता हूं अखिलेश जी को, जो भी मेरा विचार है उन्होंने पूरा पूरा उसका समर्थन किया है। He said he will stand by this idea, this ideology. I am very thankful to him. Now I request Akhilesh ji. तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव जी का मैं धन्यवाद देता हूं। लगातार कई बार बातचीत हुई है, फोन के माध्यम से भी, और ये प्रयास रहा कि एक बार साथ बैठ जाएं। मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली की वजह हैदराबाद और आपके बीच में बैठने का मौका मिला, क्योंकि पूर्व में आपने बहुत सारी बातें विस्तार में रखी हैं, कहा भी है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपके नेतृत्व में तेलंगाना प्रदेश जहां आगे बढ़ रहा है, नई योजनाओं से किसान गरीब उसके बीच में पहुंचने का काम कर रही है योजनाएं, और वह कहीं ना कहीं अपने काम से जनता का भरोसा जीता है। एक मुख्यमंत्री के लिए और एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता का उस पर भरोसा हो, और मैं ये कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने अपने काम से जनता के बीच में एक भरोसा पैदा किया है। और चाहे वो पानी घरों तक पहुंचाने की बात हो, आज पानी का सबसे बड़ा सवाल है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में यह सवाल बड़ा है कि पानी पीने का हो और पानी खेत तक पहुंचे। और शायद मुख्यमंत्री जी ने यह काम यहां किया है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। किसान खुशहाल जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी की बड़ी संख्या में लोग खेती पर जुड़े हैं। जो खुशहाली अगर वहां आएगी, वही खुशहाली कारण बनती है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। देश चाहता है कि नया परिवर्तन दिखाई दे, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके लगातार काम करने से देश में कहीं ना कहीं ये आस जागी है कि ये परिवर्तन दिखाई देगा, जो एक अच्छा परिवर्तन होगा आने वाले समय में। क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रहीं, पूर्व की जो केंद्र में सरकारें रहीं, उन्होंने बहुत जनता को निराश किया है। गरीब, किसान और आर्थिक पहलू पे भी बड़े पैमाने पे निराशा आई है। अगर हम दूसरे मुल्कों से तुलना करें अपने देश की, तो शायद हम उतना नहीं खड़े दिखाई देते जितना हमें दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है। अगर हम टैलेंट ढूंढें तो बड़े पैमाने पे हर क्षेत्र में टैलेंट दिखाई देता है। हमारे यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाके बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वातावरण पैदा कर रहे हैं। अगर वही वातावरण हमारे बीच में हमको मिल जाए तो शायद हम भी उन देशों के मुकाबले पे खड़े हो जाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम जो प्रदेश की रीजनल पार्टीज हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा, और मैं आज फिर कहता हूं आपके सामने, अगर देश की बीजेपी सरकार को कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं, जो इस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। क्योंकि बीजेपी ने जितना निराश किया उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और वादों की बड़ी लिस्ट है।
अगर वादों की हम सूची देखें, लिस्ट देखें, तो बड़ी लिस्ट है। हो सकता है यहां के प्रदेश के बारे में भी कुछ उन्होंने वादे किए हों, बगल के प्रदेश के बारे में भी वादे किए हों। यूपी से हम आते हैं, हमारे यहाँ तो ज्यादा वादे किए थे, बिहार में भी वादे किए थे। तो जो वादे किए थे वो जनता पे खरे नहीं उतरे, आज कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो समय नहीं बचा उनके पास, अब वो पूरे होंगे कैसे? इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी के साथ बहुत विस्तार में कई विषयों पे बातचीत हुई है। बातचीत और भी होगी, मिलना और भी होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और हमने कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की एक साथ जुटने की शुरुआत है। और तमाम लोग जो मिल रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में एग्जाम्पलरी वर्क किया है, जो उदाहरण बन सकता है दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी इनके काम की समर्थन करती है और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे देश को एक नया रास्ता मिलेगा, देश को ही नहीं बल्कि किसान और गरीबों को और नौजवानों को खासकर एक नया रास्ता खुलता नजर आएगा। मैं धन्यवाद एक बार फिर देता हूं। हालांकि आना बहुत कम हो पाता है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से समाजवादियों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है। लोहिया जी के जमाने से लेकर के अभी तक का रिश्ता है। और फिर रिश्ता तो बनाने से बनता है, जब बनाया जाएगा रिश्ता तो रिश्ता बनेगा। और जितना सम्मान एक दूसरे का होगा, मैं समझता हूं उतना ही ज्यादा बड़ा रिश्ता बनेगा, मजबूत रिश्ता बनेगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो आपका काम है उसको और आगे बढ़ाएं, तो हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और उनके तमाम सहयोगी साथी जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां तक शुरुआत हुई है परिवर्तन की, वो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभाओं में जिस तरीके से हार हुई बीजेपी की, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, और मैं समझता हूं आपसे बेहतर, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अगर एक मुख्यमंत्री हार जाए और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हार जाए तो कैसा चुनाव रहा होगा। शुरुआत तो की है जनता ने, उसमें भी सहयोग हमें बहुजन समाज पार्टी का मिला था, सहयोग हमें और दलों का भी मिला था। जो प्रत्याशी थे वो निषाद पार्टी के थे। तो कहीं ना कहीं देश में है वो बात, लोगों में है वो बात कि नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, और शायद वो नया अल्टरनेट जो बनने जा रहा है उसके समर्थन में मैं हूं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। ईश्वर, from the discussions both of you had today, can you specify 1 or 2 points that specifically interested you in taking the country forward according to his vision? अभी सब बातें बताना ठीक नहीं होगा। जहां तक इनका पक्ष है, जो आपने कहा कि एक प्रोग्रेसिव, एक विजनरी, और वहीं जो पूर्व में सरकारें रही हैं उनसे निराशा हाथ में आई। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए बीजेपी की सरकार ने यह कहा कि नोटबंदी से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या वो सच्चाई थी? इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस अल्टरनेट पे आप काम कर रहे हैं, जो एक नया रूप में दलों को जोड़ करके काम कर रहे हैं, ये बड़ा काम है। बाकी और चीजें उसके साथ साथ आ जाएंगी। कामयाब नहीं हो सकता। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप इस बात, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, बोले पॉलिटिकल मंच के बगैर ये डेमोक्रेसी कंट्री में पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद, और मैंने वही कहा आपसे कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप लगातार वो काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी वर्क हैं। तो बिना पॉलिटिकल विल के शायद नल पे पानी नहीं पहुंचता, खेत में पानी नहीं पहुंचता। 1 एकड़ के किसान की मदद बिना पॉलिटिकल विल के नहीं होती। और वहीं हम अपना बता सकते हैं कि एक्सप्रेस वे ऐसा बनाया है,
आप मिराज उतारना चाहें मिराज उतार लें, सुकोई उतारना चाहें सुकोई उतार लें, और दुनिया का सबसे हैवी व्हीकल या एयरक्राफ्ट जो है हरकुलिस, अगर वो उतारना चाहोगे तो उतार लोगे। तो बिना पॉलिटिकल व्यू के नहीं होता है, और ये तमाम काम अपने संसाधनों से हुए हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से नहीं। अखिलेश जी, आप राहुल गांधी को भी अपना एक दोस्त मानते हैं, काफी दिनों से चर्चा रही है। आपके इस पूरे मंच में राहुल गांधी या कांग्रेस का भी कोई रोल है, या कांग्रेस को भी अपने पास लेंगे, या एक गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी गठबंधन होगा? मैंने जो आपसे कहा कि आपका जो प्रयास है कि पूर्व सरकारों ने निराश किया है, और जो प्रोग्रेसिव रीजनल पार्टियां उनको साथ लाने का, इसीलिए आपने भी कहा कि इसका कोई नाम मत दीजिएगा अभी। हालांकि दूसरे दल के लोग ये कह सकते हैं कि आप कैसा गठबंधन कर रहे हो, हमसे भी सवाल करते थे। आप बीजेपी का देखिए, 45 से ज्यादा दल हैं उनके साथ, तो अभी तो 2 ही 4 5 10 लोग मिले होंगे हम, अभी तो हमारे पे गुंजाइश 35 की है। अखिलेश जी, एक मिनट। क्या चाहिए भाई, पूछो ना। पूछते नहीं। अखिलेश जी, ये राजनीतिक दलों का जो गठबंधन चल रहा है, ये कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार से होता या उसके चुनाव के आधार से हो रहा है? राहुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, उन्होंने भी साफ बताया, मैंने भी साफ बताया, आपका सवाल का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, हमने बार बार ये साफ कह रहे हैं, ये शुरुआत है। वी मेड ए बिगिनिंग, वी आर डिस्कसिंग व्हाई यू पीपल आर इन ए हरी, व्हाई आर यू आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस लाइक आपके व्यक्तिगत दोस्ती फलाने से थी, डिमका से थी, ये क्या चाहिए? इस देश में एक परिवर्तन लाने के लिए, एक अच्छी परिवर्तन लाने के लिए, क्वालिटेटिव चेंज लाने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है। पत्रकार मित्रों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इसमें राजनीति कम देखिए, देश का परिवर्तन, देश का सौभाग्य का ज्यादा देखिए। इट इज ए बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशंस। उन्होंने साफ कहा, मैंने भी साफ कहा, पूर्व सरकारों ने फेल्यूर हो गए। जो लोगों की अपेक्षाएं थे वो, उसमें हमने कोई घुमा फिरा के थोड़ी बोल रहे। पूर्व सरकार किसने चलाया सारे जानते हैं, इसमें फिर बार बार चेक करने की क्या जरूरत है? वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड। हाँ, बिल्कुल वही है, और क्या है? नहीं, सरकारें चलाए तो वही चलाए ना भाई। वैसे कर्नाटक में जाना चाहूं तो यहां से बहुत करीब है, लेकिन मैं लखनऊ जा रहा हूं अभी। लखनऊ और हैदराबाद का दोनों का एक सा व्यवहार है। देखिए, एक एक जगह एक एक चीज होता है, एक एक जगह एक एक गठबंधन होता है। आज के हालात में जहां जिनको जो सहूलतमंद है उस मुताबिक लोग चल रहे हैं, चल पड़े भी हैं, चल रहे हैं। हमारा जो प्रयास है, मैं आपसे कहा, ये कोई 219 के चुनाव के लिए नहीं है एकदम, और वहीं तक सीमित भी नहीं है। एक क्वालिटेटिव चेंज, एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बदलाव अगर आप चाहते हो तो इसका कोई सीमा नहीं होता, कोई चुनाव का सीमा नहीं होता इसका। ये प्रयास तो काफी जारी रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम साफ कह रहे हैं, अनलेस देयर इज ए क्वालिटेटिव चेंज इन दिस कंट्री, unless there is a quantum jump of things, unless you make some structural changes, you cannot change the routine which has happening for the last 70 years. I request all the journalist members, journalist friends, my earnest appeal to you, please make it only a political game kind of a thing. It's not mere political game. I have been repeatedly requesting you. This proposal is for a very, very qualitative change in the process of politics, in the process of governance. We have to develop, this country needs to develop. We are a large polity, 130 crores. We cannot play with the lives of the future generations of India. We have to take a quantum jump. जैसा अखिलेश जी ने कहा है, हमारे युवा जाके सिलिकॉन वैली पूरा भर देता है, सारे देशों में हमारे विज्ञानी है। तो इसीलिए इन चीजों को यहाँ करने के लिए, इस देश को एक नया दिशा देने का जो प्रयास हो रहा है, हाँ डेफिनेटली, जैसा भाई साहब ने पूछा वहां से, इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, पक्का होना चाहिए। अभी हमने शुरू हो पड़ा है, हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है। सो हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे आगे चल के, अभी बात काफी कुछ होने हैं।
कई अन्य मित्र हैं जिनके बारे में अब नहीं बता रहे आपको। अब अखिलेश जी से मेरा 1 महीना सवा महीना से लगातार हम लोग फोन पे चर्चा करते रहे, आज मिले, आज विस्तार रूप से बात हुई। और कुछ अन्य मित्र हैं जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिल के बात करते हैं। अब मैं कुछ दिनों में मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां कुछ मित्रों से मिलूंगा, कुछ अन्य दल है उनसे भी मिलूंगा। ये जो कोशिश किया जा रहा है, बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये 1-2 पार्टी या 1-2 लोगों से होने वाली बात नहीं है, कई लोगों का और जोड़ना पड़ेगा। फिर सभी जब मिलेंगे, एक सहमत होगा, जरूर एक मंच होगा जिसमें एक कंसेंसस होगा, जिसमें एक एजेंडा होगा, उसके तहत उसको लेके एक कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देश में कोई तब्दीली लाना है, कोई बदलाव लाना है तो राजनीति ला सकता है, इसमें कोई क्या शक है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो हम एक बात साफ जनता के सामने, देश के जनता के सामने ये बात साफ से रख रहे हैं कि पूर्व सरकारें जनता के अपेक्षाएं पूरे करने में सफल नहीं हुए बल्कि विफल हुए। लोग निराश है, इसीलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई नेता ऐसे हैं, कई दल ऐसे हैं कि वो जुट करके, एकजुट करके इस देश में परिवर्तन की दिशा लेके आगे बढ़ रहे हैं। निराश ना होइए, जल्द से जल्द, यानी कि मेरे ख्याल से कोई 1-1.5-2 महीने के अंदर पूरी एजेंडा के साथ हम देश के सामने आएंगे। जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो ताकतें हमसे जुड़ेंगे, सबको साथ लेकर हमको चलना पड़ेंगे। क्योंकि इतना बड़ा देश के लिए एक एजेंडा प्रिपेयर करना एक आदमी, एक दल नहीं कर सकते, एक कंसेंसस बनाना पड़ता है। तो दिस इज ए जस्ट बिगिनिंग, इट्स ए गुड बिगिनिंग, हेल्दी बिगिनिंग। इतने कम समय में इतने लोग मिल पा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें डोंट ट्राई टू ब्रिंग आउट प्रिंट पिक्चर्स, कौन किसके साथ है, क्या साथ है। वी विल फिक्स अप एन एजेंडा, उस एजेंडा के साथ हमारे साथ जो आए वो जुड़ जाएगा, जो हमारे साथ आएगा वो जुड़ जाएगा। वो इसका नाम ना ले, उसका नाम का कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ आवर अलायंस विल बी द एजेंडा विच वी आर गोइंग टू प्रपोज, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। उसके साथ कोई भी जुड़ सकता है। वी डोंट डिक्लेयर एज एनीबॉडी इज अनटचेबल, वी विल कीप आवर ऑप्शंस ओपन। So we are with an open mind. For all this is being done to achieve the political aim, not the political aim, not mere the political aim. कोई किसी को प्रधानमंत्री बना दे, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में शुद्धि है, हमारे लक्ष्य में देश को बढ़ोतरी मिले, देश को बड़प्पन मिले, देश आगे बढ़े, अब तक जो होता रहा वो बंद हो जाए और एक प्रोग्रेसिव तरीके से देश आगे बढ़े, ये प्रयास है। इस चीज को आप समझे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।